Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very great. Today students, let's start the new chapter of class 4th, which is chapter number 9 about water. Okay, a precious resource. Water is one of the most common and useful substances around us. We can see it in pond, lake, rivers, seas and ocean, right? ये सभी different sources हैं water के. And also water is present below the surface of earth. Earth के surface से नीचे भी water is present. Now there is more water than land on the earth surface. ठीक है, अर्थ सरफेस पे लैंड से ज्यादा वाटर प्रेजेंट है. नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है. उसके अलावा कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर के, जैसे कि रिवर, सीज, ओशन, लेक्स. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर, ज्यादातर वाटर जो है वो आइस कैप की फॉर्म में प्रेजेंट है नियर दी पोल्स. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. एयर में भी वाटर प्रेजेंट है वाटर वेपर की फॉर्म में. ओके, इवन क्लाउड्स भी आपके वाटर के बने हैं. कुछ वाटर आपका अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट है, जिसको आप ट्यूबवेल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं. So these are the different sources of water, and almost water is present everywhere on the earth. You can see this is river, lake, sea, ice cap, well, tube well. तो ये सभी क्या है, different sources हैं of water. Now the properties of water. बात करते हैं water की properties की. So pure water आपका colorless और transparent होता है, जो pure water होगा. Then water is odorless और tasteless. Water की ना तो कोई smell है, ना ही कोई taste होता है. Many substances, कई सारे ऐसे substances हैं जो कि water में dissolve कर सकते हैं, and therefore water is known as universal solvent. Next, there are 3 states of water. Water की कितनी major 3 states होती हैं? That is solid, liquid and gaseous state. Solid में आपका ice solid state है water की, and water आपका liquid state है, and water vapor आपकी gaseous state है. Our body can take in food only when it is dissolved in water. हमारी बॉडी भी फूड को तभी एब्जॉर्ब कर पाती है जब फूड हमारा वाटर में डिसॉल्व होता है. दैट मीन्स हमारे सर्वाइवल के लिए भी वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इम्प्योरिटीज इन वाटर. अब बात करते हैं कुछ इम्प्योरिटीज की. So when it rains, the water flows down and carries with it many impurities. Some water supplied to our homes may have impurities in it. So the water we may get, it must be impure. So what they're saying कि जब बारिश होती है and water flow करता है तो अपने साथ बहुत सारी impurities को carry करता है. एंड ये कुछ वाटर ऐसा है जो हमारे घर में सप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं. दैट मीन्स व्हाट, जो हमें पानी मिलता है वो इम्प्योर हो सकता है. सो इसलिए हमें इस वाटर को प्योर बनाना और इसके बाद उसको कंज्यूम करना काफी जरूरी होता है. सो मेजरली हमारे पास 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती हैं विच मे डिसॉल्व इन द वाटर. नंबर 1 insoluble impurities and the other is soluble impurities. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं एंड दे कैन बी सीन इजीली. इनको आसानी से देखा जा सकता है. सच इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, सैंड, मड एक्सेट्रा. These all are insoluble impurities which are present in water. Then second we have soluble impurities. Soluble impurities वो impurities है जो water में present होती हैं but they cannot be seen. इन्हें देखा नहीं जाता इस तरीके से. Okay, and they are called soluble impurities. जैसे कि germs present in water. Water में जो germs present होते हैं that is soluble impurity and they cannot be seen easily. इन्हें easily नहीं देख सकते हैं. Next is purification of water. So now we must purify the dirty water before drinking and using it. ओके, सो इसीलिए अब हमें पानी को पीने से पहले, उसको यूज करने से पहले उसको प्योरीफाई करना जरूरी है. सो नाउ दे हैव गिवन यू डिफरेंट वेज टू प्योरीफाई वाटर. नंबर 1 वी हैव सेडिमेंटेशन. So the impure water is made to stand undisturbed. It should not be stand, it should be stand. Okay. So the impure water is made to stand undisturbed for some time. Impurities like sand and mud which are heavier than water are left on the bottom. So student what they're saying कि जो impure water होता है जिसके अंदर काफी सारी हेवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, उनको हमें क्या अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए. उससे क्या होगा, जितने भी हेवी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वाटर के नीचे बॉटम में सेटल हो जाएंगे एंड द क्लीन वाटर विल कम अबव द इम्प्योरिटीज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन प्रोसेस. द नेक्स्ट वी हैव डिकेंटेशन. द क्लियर वाटर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन के बाद जो आपको ऊपर क्लियर वाटर मिला है इसे हमें केयरफुली एक दूसरे कंटेनर में पोर कर लेना चाहिए एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज डिकेंटेशन. डिकेंटेड वाटर में नॉट कंटेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. अब जो आपको डिकेंटेड वाटर मिला है उसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज तो नहीं होंगी बट स्टिल उसके अंदर काफी सारे जर्म्स हो सकते हैं विच वी कैन नॉट सी. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर. फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसे आप फिल्टर पेपर का यूज करके
रिमूव कर सकते हैं। इम्प्योर वाटर इज पोर्ड ओवर अ फिल्टर पेपर। इसमें आपको इम्प्योर वाटर को एक फिल्टर पेपर के अंदर पोर करना है, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सभी पेपर में रह जाएंगी एंड क्लियर वाटर जो है वो उसके नीचे जो बीकर है उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। समवॉट लाइक दिस यू कैन सी, ये आपका क्या है, क्लीन वाटर आपको इस वेसल के अंदर मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ये फिल्टर है इसके अंदर सारे सैंड कलेक्ट हो गई है एंड नीचे आपका क्लियर वाटर मिलेगा। Next is cleaning water. In rainy season, the tap water sometimes becomes unfit to drink. We should always bring clean water. अब स्टूडेंट्स रेनी सीजन में कभी कभी जो टैप वाटर होता है वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट हो सकता है, सो इसीलिए हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए। नाउ दे हैव गिवन यू सम मेथड्स दैट हाउ कैन वी क्लीन द डर्टी वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट, नंबर वन, बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डर्टी वाटर को क्लीन बना सकते हैं, बिकॉज बॉइलिंग क्या करता है, वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट है इट किल्स ऑल दोज जर्म्स। सेकेंडली, हम वाटर फिल्टर का यूज कर सकते हैं एंड थर्डली इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर का भी हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द वाटर प्योर। ओके, दिस इज द बॉइलिंग वाटर मेथड, this is water filter and this is electrical water purifier. Now next is water scarcity. In many parts of our country water is scarce. ठीक है, हमारे कंट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे पानी की कमी है। ओके, कुछ प्लेसेस में वुमेन को काफी सेवरल किलोमीटर्स का डिस्टेंस हर रोज वॉक करके जाना पड़ता है टू कलेक्ट द वाटर फॉर द डेली पर्पस। ओके, इन समर्स में वाटर जो है काफी सारे टाउन्स और सिटीज में शॉर्ट सप्लाई में होता है एंड इट मेक्स अवर लाइफ वेरी डिफिकल्ट। एंड क्योंकि पानी की पूरी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लाइफ जो है काफी डिफिकल्ट हो जाती है। इट मेक्स अस थिंक टू सेव प्रीशियस वाटर एंड वहाँ पे हमें क्या इस चीज की जरूरत समझ में आती है कि वी शुड सेव दिस प्रीशियस वाटर, वी शुड नॉट वेस्ट इट। नेक्स्ट इज वाटर हार्वेस्टिंग. So we can divert the rainwater into wells or underground tanks where it can be stored for future use. This is called water harvesting. So स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, जितना भी रेन वाटर होता है, बारिश का पानी है, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं वेल या अंडरग्राउंड टैंक में, जहाँ पे वो सारा बारिश का पानी स्टोर हो जाए एंड हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। दिस इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, अब वाटर हार्वेस्टिंग का एम क्या है, टू कंजर्व रेन वाटर। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इसके जरिए रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं सो दैट जो लोकल नीड्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके बिकॉज ऑफ दैट कलेक्टेड रेन वाटर। नाउ नेक्स्ट इज वी कैन रीयूज द वाटर। अब बात करते हैं वाटर के रीयूज की। सो हम वाटर को रीयूज कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज। नंबर वन, वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना भी पानी आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए यूज किया है उसे आप कलेक्ट करके उसे प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, आपने क्लोथ्स वॉश करने के लिए जो वाटर यूज किया है उसको आप कलेक्ट करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं फ्लोर की मॉपिंग के। देन वाटर यूज फॉर वॉशिंग हैंड्स एंड फेस कैन बी यूज टू फ्लश आउट द टॉयलेट। जो वाटर आपने हैंड्स एंड फेस को वॉश करने के लिए यूज किया है उसे आप टॉयलेट फ्लश आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। So this is how we can reuse the water. Now save water. As we all know that water is very precious, so we should save it. How? Number one, get the leaking taps repaired. अगर आपके घर में या आसपास कोई भी leaking tap या pipe है, you should get it repaired immediately. Then turn off the tap after use. After use, आपको tap को तुरंत turn off करना चाहिए. Do not keep tap water running while brushing. Brush करते वक्त आप tap water को जो running state में रखते हैं, you should never do that because इसके through water का wastage होता है. Okay, it is very precious. We should save it. We should not waste it. So the chapter is completed. That's all for today. Let's meet in the next class. And take care and thanks to everyone.